Hello, good morning, all students. I, Ashish Vagumbare, again welcomes you in my physics classes. In last lecture, we have sorted out the numericals which are based on internal energy by the thermodynamic system. And now today, we will see one of the important term that we have used in first law of thermodynamics, that is nothing but your heat. So, in this particular lecture, we discussed about that what is heat capacity, what is specific heat capacity. There are two types of specific heat capacities. One is specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume. Also, we have to explain that molar specific heat capacity at constant pressure and at constant volume. सो बच्चों ये वीडियो अगर आप पूरी तरह से अगर अंडरस्टैंड करते हो तो हीट के बारे में जो कुछ कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करनी है वो सब चीज़ें यहाँ इस वीडियो लेक्चर में आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको ये लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will take that heat capacity. So what is that heat capacity? अगर हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनामिक्स की स्टडी की तो उसके अंदर जब हम केमिस्ट्री के लिए भी हीट देखेंगे, अगर फिजिक्स के लिए भी हमने हीट देखी तो बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट हीट इज सेम और दैट साइन ऑफ हीट इज सेम। जैसे कि हमने वर्क के बारे में पढ़ा था कि केमिस्ट्री में वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है और फिजिक्स में अगर हमने वर्क पढ़ा तो दैट वर्क विल बी पॉजिटिव। सो देर इज वन डिफरेंस इन द अंडरस्टैंडिंग टू वर्क, but in that case if we talking about this heat will be, or that sign of heat that will be constant for this physics and chemistry. Now we'll move further for about that heat. What is heat, or what do you know about that heat? Heat simply, it is the energy transfer, or we can say that this is the energy that will be energy, it is exchange between the system and the surrounding. So energy क्या है यहाँ पर? हीट इज द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन क्या? सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर हम बोलेंगे कि हीट इज ट्रांसफर्ड, दैट मीन्स हीट विल बी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम और हीट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम to the surrounding and to the by the surrounding. So these are the two concept related to heat. सिंपली अगेन हीट को डिफाइन करेंगे तो इसके लिए और एक टर्म हम लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जहाँ बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर, सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट विल बी अ form of transfer of energy, but when it will be, there is a temperature difference. So always you have to remember heat is a form of energy or it will be a transfer of form of energy when there is a temperature difference. What is the symbol of heat? Q. Q is the symbol of heat. And what is its unit? The unit is joule. Okay, we can write this as a joule, or it will be a calorie. You know the conversion between 1 calorie to joule? This 1 calorie is equivalent to 4.182 joule. Okay, so this is heat. Now what about that sign conventions? हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं साइन कन्वेंशन, तो उसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। देर आर टू पर्टिकुलर साइंस। सपोज हीट इज और हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हमने सिस्टम को हीट पहुंचाई है
So it will be positive. This is for gain, okay, in terms of. And second, heat given by the system. There are two different words. One is heat given to the system, and second one is heat by given by the system, and that will be nothing but it will be losses that heat. Okay, so this is the sign convention for heat. So this is the brief history regarding heat. Now we are going to understand that particular concept of heat capacity. So what is that heat capacity? First of all, or by the formula we can define that. Firstly, we'll write the formula. This heat capacity should be given by delta Q upon delta T. Okay, so firstly we have to understand the definition by its formula. Heat capacity is defined as, it is, what is delta Q? It is the amount of heat is needed to change. किस लिए चाहिए हमें ये amount of heat? To change that temperature. ओके, किसका टेम्परेचर हमें चेंज करना है? कोई बॉडी का या फिर कोई सिस्टम का. देन द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. So understand what is the definition? The amount of heat is required or it will be needed to change the temperature of the body, then the heat capacity of the material is delta Q upon delta T. Okay, so here this delta Q is nothing but your amount of heat needed, and what is this? This is temperature of the body. Okay, so you should write the definition. If an amount of heat delta Q is needed to change the temperature of a body by delta T, then the heat capacity is this. Okay, or in other terms, we can write the definition as heat capacity is equal to the heat energy required to change the temperature of a body by unity. समझ में आ रही है डेफिनेशन? Heat capacity is equal to heat energy which is required to change this temperature of a body by unity. Unity means by 1 degree Celsius. So it is the amount of heat. कितने amount of heat हमें लगने वाली है to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हमें ये बॉडी का किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना हो तो उसके लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ हीट लगने वाली है, दैट इज नथिंग बट योर हीट कैपेसिटी. जैसे कि अगर मेरी कैपेसिटी है, अगर मुझे बोलना है कि मुझे ये चीज़ हमें यहाँ से उठानी है, तो 50 केजी का वेट है और 50 केजी का वेट मैं उठा सकता हूँ, तो दैट इज़ माई कैपेसिटी, राइट. अगर किसी की कैपेसिटी 100 केजी का वेट उठाना तो वो 100 केजी का वेट उठा सकता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी. सो द अमाउंट ऑफ हीट हमें लगने वाली है टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नथिंग बट योर हीट कैपेसिटी. व्हाट इज द यूनिट हियर? हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो सकता है? डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट. अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन इन terms of joule, that is the unit of heat, and delta t is nothing but your temperature, it is in Kelvin. So joule per Kelvin, that is the unit of specific heat capacity. This is called as the SI unit of specific that heat capacity. Okay, now further we are going to move on the next concept, that is specific heat capacity. अभी आपने heat capacity to understand कर ली. So what is here specific heat capacity? We can denote it by a letter C. Okay, this is a small c.
We have to use again a capital C for the different term. So we can consider this is a small c. Okay, so specific heat capacity हम देखेंगे in terms of any particular material. That is suppose firstly हम देखेंगे that is a gas. So his specific heat capacity हम gas material के लिए use करेंगे. Okay, so what is the specific heat capacity? Just you have to understand the definition. Firstly I've written that definition here, and then we'll explain it. The amount of heat required, side by side you can also write this definition, to raise the temperature of unit mass of a substance by unit temperature is known as specific heat capacity. Just you can understand this definition first. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass. यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? हमें दो चीज़ें चाहिए. फर्स्ट एक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए. सेकंड हमें यहाँ पर क्या चाहिए? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास. टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर किसका बढ़ाना है? हमें यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस का बढ़ाना है. कितना बढ़ाना है? बाय a unit, that means by 1 degree Celsius. So first of all we will understand this. The amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance by unit temperature is known as a specific heat capacity. We should write the formula here. Specific heat capacity is nothing but your denoted by letter C, and that should be the amount of heat required. How much amount of heat is there? Delta Q is the amount of heat that should be required. किस लिए चाहिए हमें? To raise the temperature of a unit mass. Unit mass का हमें temperature यहाँ बढ़ाना है. That means it is M. कितने से बढ़ाना है? चेंज करना है तो यूनिट टेम्परेचर से चेंज करना है. So it is delta T. So the formula is given by delta Q upon M into delta T, where this delta Q is nothing but your amount of heat that should be required, and this M is nothing but a mass, and delta T is nothing but your change in temperature. Okay, so what is the SI unit for this? SI unit, and that is joule per kilogram per Kelvin. Okay, this is the SI unit, and or we can write CGS unit is Erg per gram per degree Celsius. Okay, so simply अगर हम इस फॉर्म को देखेंगे, इस फॉर्मूला को देखेंगे, तो हमें ये समझ में आता है कि दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर होती है, डिपेंड होती है. सो इट विल बी डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर, और ऑल्सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दिस मास. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मास हियर? मतलब किस सब्सटेंस का हम जो मास ले रहे हैं वो सब्सटेंस किस तरीके से बना हुआ है? वो गैस है, वो लिक्विड है, या फिर वो कोई सॉलिड सब्सटेंस है? तो उस सब्सटेंस के नेचर के भी ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड होती है. तो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये डेफिनेशन आपको समझ में आई? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट टेम्परेचर. यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं? सपोज वी विल कंसिडर अ वाटर, और उस वाटर की हमें 1 ग्राम हमने वाटर कंसिडर किया है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, और 1 ग्राम ऑफ वाटर को इसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना? तो इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से. तो इस 1 ग्राम ऑफ वाटर का, दिस इज योर मास एंड दिस इज नथिंग बट योर चेंज इन टेम्परेचर.
तो ये दो चीज़ें अगर हमारे पास है तो वाटर का हमने 1 ग्राम ऑफ मास लिया है और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज यूनिट टेम्परेचर, वी कैन से दैट 1 डिग्री सेल्सियस से हमें उसको चेंज करना है। तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट ज़रूरी है, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नथिंग बट योर 4.2 जूल। So that much amount of heat should be required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. That is nothing but your specific heat capacity. Okay, understand this? Now अगर हम इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को और उसके वैल्यू को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कैसे बढ़ती है फॉर अ गैस। सो अगर हमने कंसिडर किया, एक प्रोसेस कंसिडर करते हैं हम, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है कि डेल्टा टी कितना होता है, 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज दो बॉडी के टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो जाके हम उसको आइसोथर्मल कंडीशन बोलते हैं। तो आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर हमें डेल्टा टी की वैल्यू मिलती है 0। और सेकेंड एक प्रोसेस है दैट विल बी कॉल्ड एज अ एडियाबेटिक प्रोसेस, जो कि हमें अभी सीखनी है आगे। तो यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस, दीज आर द टू थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। सो इन दैट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस व्हाट हैपन्स इन एडियाबेटिक, देर मस्ट बी अमाउंट ऑफ हीट जो है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज, वी कैन से दैट नॉट एक्सचेंज। वहां पर कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी, दैट मीन्स हीट इज देयर, सो दैट पर्टिकुलर हीट शुड बी इक्वल टू 0। अभी हमारे फॉर्मूले की वजह से क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर हमने आइसोथर्मल के लिए ये कंडीशन कंसिडर की तो सी आइसोथर्मल बोलेंगे हम इसको। सो सी आइसोथर्मल, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एम 0 हो जाएगा। एनी पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 इज infinity. So this specific heat capacity for isothermal process is infinite. Okay, if we are going to get that particular in terms of adiabatic process, so यहाँ पर भी अगर हमने इस फॉर्मूला को लिखा, that is for adiabatic process, so what is that adiabatic process, delta Q यहाँ 0 हो जाएगा, so 0 upon anything is 0, so we can get that specific heat capacity for that adiabatic process is 0. That means the value of specific heat capacity for a gas is very very different. That will be, कभी ये 0 हो सकता है, कभी वो infinity तक change हो सकता है। That means specific heat capacity of a gas is in between that 0 to infinity. Okay, so understand this. Okay, now there are two types, यहाँ दो टाइप से, दो तरीके से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल सी सफिक्स वी से। सो यहाँ सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड वी इज नथिंग बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो इसको डिफाइन करने के लिए जस्ट एक फॉर्मूला लिख देते हैं तो उसको आपको समझ में आएगा। हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर सी एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको हमने सी वी लिख दिया। सो सी वी इज नथिंग बट योर डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। So this is the formula to calculate that specific heat capacity at constant volume. Okay, in that case अगर हमने देखा कि amount of heat हमें लगनी है, कितनी amount of heat लगने वाली है यहाँ पर to raise this temperature of 1 gram of a gas। अगर हमने मास यहाँ कंसिडर किया कि 1 ग्राम, तो हमें क्या करना है, सपोज हमने कंसिडर किया है कि 1 ग्राम ऑफ गैस यहाँ पर लिया है हमने। अगर इस 1 ग्राम ऑफ गैस को हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, दिस अमाउंट ऑफ हीट जितनी लगने वाली है दैट इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज वन।
नाउ देयर मस्ट बी अ सेकेंड वन, एंड सेकेंड में भी हम देखेंगे दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity at constant pressure. So these are the two different terms that we have to understand here, and this will be denoted by small cp. C suffix p. P is for constant pressure and C is nothing but your specific heat capacity. So for this particular we can write the formula as Cp, that should be equals to again delta Q upon M into delta T. So this is the specific heat capacity at constant pressure. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप सबको समझ में आ रही है। हमें क्या करना है कि किसी मास को कंसिडर करना है, और किसी मास को मतलब वो होता है एक यूनिट मास, और यूनिट मास का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है या फिर इसको चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ हमें लगने वाली है दैट इज़ नथिंग बट योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो अगर इसके बारे में हम कांस्टेंट प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं तो हमने वही 1 ग्राम ऑफ गैस यहाँ कंसिडर करेंगे। सो 1 ग्राम ऑफ गैस का हमने टेम्परेचर यहाँ बढ़ाना है, और टेम्परेचर हमें बढ़ाना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ हमें लगने वाली है दैट इज नथिंग बट योर Cp। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, नाउ इसके बाद हम मूव करेंगे अगली टर्म पे, तो दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। यहाँ हम सब गैस का ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमें गैस पढ़नी है। ओके, सो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ देखेंगे। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। अभी दो चीजें हमने देखी है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी है, और अभी हम दूसरी चीज देखने जा रहे हैं दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? मैं सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूंगा, तो फॉर्मूला लिखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? सिंपली यहाँ हम क्या कर रहे थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला जो लिखेंगे हम, दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डेल्टा क्यू बाय m into delta t. Just we have getting that term, that is nothing but your m. M is the mass of the substance. So we have to just remove that mass of the substance, or we can say that this variable should be replaced by another term, and that is nothing but your molar term. So that is n into delta t. So this is the formula to calculate molar specific heat capacity of a gas. C is the molar specific heat capacity. This delta Q is the amount of heat that should be required to raise the temperature of n number of moles of gas. Here हमने एक मोल गैस के लिए कंसिडर करते हैं, तो n मोल ऑफ गैस, और n is the number of moles of gas, we can consider that value should be equals to 1 mole. So यहाँ एक मोल गैस की अगर हमें वैल्यू बढ़ानी है, या फिर उसको 1 मोल ऑफ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से हम अगर बढ़ाएंगे, तो जितने अमाउंट ऑफ हीट यहाँ हमें लगेंगी दैट नथिंग बट योर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक ही चेंज है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम मास ऑफ द सब्सटेंस यूज करते हैं, और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट योर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। इसकी डेफिनेशन अगर हमने लिखा यहाँ पर, तो दैट इज amount of heat required to raise the temperature of 1 mole, to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius is called as a molar specific heat capacity of the gas. Again, यहाँ पर अगर हमने इसका ऐसा यूनिट देखा, तो यूनिट यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट है, मतलब जे इज द जूल,
नंबर ऑफ मोल्स है तो इसको हम लिखेंगे मोल, और डेल्टा टी है तो इट विल बी केल्विन. सो इट इज जूल पर मोल पर केल्विन, और वी कैन राइट इट इज जूल पर किलो मोल per Kelvin. Okay, so that two are nothing but your equations. So Cp और Cv के लिए हम क्या equations लिखेंगे यहाँ पर? तो Cv आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन n इंटू डेल्टा T, एंड Cp आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन n इंटू डेल्टा T. ठीक है, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम. सो अब हम मूव करते हैं रिलेशन में. So what is the relation between that specific heat capacity at constant volume and specific heat capacity at constant volume? So relation between specific heat capacity at constant volume and molar specific heat capacity at constant pressure. ठीक है, तो ये रिलेशन हमें देखना है. बेसिक रिलेशन है, अगर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CV से लिखा, CV मतलब स्मॉल CV, दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड मोलार स्पेसिफिक हीट को लिखेंगे तो दैट विल बी, यू हैव टू राइट दैट कांस्टेंट C इज कैपिटल. सो दिस इज CV. ओके, दिस इज मोलार, molar specific heat capacity at constant volume. Okay, so the relation between that two, specific heat capacity और molar specific heat capacity, that molar specific heat capacity उसको हम capital CV से लिखेंगे, that should be equals to m into small cv. What is here m? M is what? It is the molar specific heat capacity, CV is the molar specific heat capacity at constant volume, m is the constant, and CV is the specific heat capacity at constant volume. So this is the relation between that molar specific heat at constant volume, and this is the specific heat at constant volume. Similarly, अगर हमने प्रेशर के लिए भी देखा at constant pressure, तो we can write this formula as capital Cp, that should be equals to m into Cp. So this is the relation. तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं यहाँ पर. सपोज विल टेक ऑक्सीजन हियर. तो मोलार स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे यहाँ पर. तो अगर हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन भी कितना लेना है हमें, 1 ग्राम लेना है. सो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वी हैव टू टेक. तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हमने लिया तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 32 ग्राम. ओके, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स. तो 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी 1 मोल में कितने नंबर ऑफ ग्राम्स है? तो दैट इज 32 ग्राम्स. ओके, सो यहां पर अगर 1 मोल हमने कंसिडर किया तो 32 टाइम्स हमें CV लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर हमने कंसिडर की तो वो किस लिए कंसिडर करते हैं हम? m के लिए कंसिडर करते हैं, दैट इज अ मास. कितना? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हमने कंसिडर किया, और यहाँ अगर हमें मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, या नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं तो यहाँ 1 मोल लेते हैं. तो 1 मोल में कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है? तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल में होता है. तो इसका रिलेशन अगर हमने देखा तो ये क्या आएगा? that particular molar specific heat capacity that should be equals to 32 times CV, right? तो यहाँ पर हम ये डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं
तो that is all about molar specific heat capacity of a gas and the specific heat capacity of a gas. I think you have understand this. Again, we have to take that particular relation between that specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume by Mayer's relation, and there are some of the numericals which are based on this specific heat capacity or heat capacity of a gas. So that will be we can take in a next lecture. इसमें हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी लगने वाली है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हम एटॉमिसिटी ऑफ गैस से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो क्या क्या हो सकती है उसके अंदर, नीट में कैसे क्वेश्चंस यहाँ हमें पूछे जा सकते हैं, ऑल दैट थिंग्स वी हैव टू टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।